تو حاضرین محترم، جو تعویذ بچپن سے والدین نے اور مولوی صاحب نے مل کر دیا تھا اس بچے کو، وہ اتنا مضبوط تعویذ تھا کہ اب وہ بچہ اور جتنے مرضی آپ تعویذ کروا لیں ان تعویذوں سے مسجد میں نہیں آئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ التحریم ہے اور اس کی آیت نمبر 6 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو سامعین محترم، آج اگر ہم دیکھیں کہ ہم اپنے بچاؤ کی کوشش تو کر رہے ہیں کہ ہم مسجد میں جاتے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے، لیکن ہم اپنے گھر والوں کو اس کا درس نہیں دیتے، اس کا حکم نہیں دیتے، اور نہ ہی ہم اپنے بچوں کو اپنے ساتھ مسجد میں لے کر جاتے ہیں۔ اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ اگر کسی کے بچے مسجد میں آ جائیں تو ان کے ساتھ ہمارے نمازیوں کا رویہ اور ہمارے جو ائمہ مساجد ہیں ان کا رویہ بڑا ہی تلخ ہوتا ہے۔ جو ہی نمازی دیکھتے ہیں کسی بچے کو شور کرتا ہوا، کو بات چیت کرتا ہوا یا ادھر ادھر چلتا پھرتا، تو وہ سب سے پہلے ایک یا دو نمازی بولیں گے کہ بھئی یہ کس کا بچہ ہے، یہ مسجد میں کیوں آیا ہے، اس کو کون لے کر آیا ہے۔ پھر سارے نمازی شروع کر دیں گے بولنا، اور پھر ساتھ ہی جو مولوی صاحب ہوں گے، امام صاحب ہوں گے، وہ بھی انہیں نمازیوں کی تائید میں بولیں گے کہ بھئی چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہ لایا کرو، چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ میں نے خود کئی مساجد میں اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ ہمارے اکثر علماء کرام اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہ لایا کریں۔ کیوں؟ کہ یہ مسجد میں شور کرتے ہیں، یہ مسجد میں کھیلتے ہیں، یہ نمازیوں کے آگے سے گزرتے ہیں، یہ بہانہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو حاضرین محترم، کاش کہ یہی بات جب ہمارے گھر میں ہمارے مہمانوں کے بچے آتے ہیں تو ہم ان سے بھی کہتے، لیکن نہیں، وہ ہمارا گھر ہے، ہم وہاں پر یہ بات نہیں کرتے۔ ہمارے مہمان کا بچہ جو چاہے کرتا پھرے، ہم اسے کچھ نہیں کہتے، بلکہ خوش ہوتے ہیں تاکہ ہمارا مہمان ناراض نہ ہو۔ تو حاضرین محترم، اللہ کے گھر میں کس نے آپ کو اجازت دی کہ اللہ کے مہمان اور اللہ کے گھر کے مہمان بچے آپ جھڑکیں، آپ اس پر سختی کریں اور اس کو پکڑ کر مسجد سے باہر نکال دیں؟
तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसका नतीजा ये होता है कि जब बच्चों के साथ मस्जिद में सख्ती की जाती है, जब उनको पकड़कर मस्जिद से निकाल दिया जाता है, चे जाए कि उनको प्यार से समझाया जाए, लेकिन ये बात हम मस्जिद में नहीं करते, तो इसका असर बच्चों की जिंदगी पर यह पड़ता है कि वो फिर कभी भी मस्जिद की तरफ जाने को तैयार नहीं होते। और यही अलमिया है कि आज हमारी मसाजिद वीरानी का शिकार है। अल्लाह ताला हम सबको माफ फरमाए कि यही बच्चे जब बड़े होते हैं तो फिर वालिदैन उनसे कहते हैं कि बेटा मस्जिद में जाओ, नमाज पढ़ा करो, तो वो बच्चा वालिदैन का कहा नहीं मानता। फिर वालिदैन सख्ती करते हैं, लेकिन फिर वही बच्चा बागी हो चुका होता है, और वो जब वालिदैन की बात नहीं मानता तो फिर वालिदैन परेशान होते हैं। फिर उन्हीं मौलवी साहब के पास जाते हैं कि मौलवी साहब कोई दम करें, कोई तावीज दें कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची नेक कामों में उसका दिल नहीं लगता, मेरा बच्चा मस्जिद की तरफ नहीं आता, मेरी बच्ची कुरान मजीद नहीं पढ़ती, कोई तावीज दें। तो हाजरीन मोहतरम, जो तावीज बचपन से वालिदैन ने और मौलवी साहब ने मिलकर दिया था उस बच्चे को, वो इतना मजबूत तावीज था कि अब वो बच्चा, और जितने मर्जी आप तवीज करवा लें, उन तवीजों से मस्जिद में नहीं आएगा, क्योंकि उसके दिल में नफरत पैदा हो चुकी। नमाजियों के रवैये से, मसाजिद के आइमा के रवैये से। हक तो ये था कि जो मसाजिद के आइमा हैं वो नमाजियों को समझाते कि भाई बच्चों को ना झिड़कें, बच्चों को नाराज ना हो, क्योंकि ये हमारा कल का मुस्तकबिल है। अगर आज हमारी मस्जिदों में बच्चे नहीं आएंगे तो कल बड़े होकर नहीं आएंगे। तो हाज़रीन मोहतरम, मैंने आपको कुरान मजीद की सूरा अत-तारीम पढ़कर सुनाई कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालों, अपने आप को भी बचाओ और अपने अहले खाना को भी बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ, अपनी बीवी को बचाओ, अपने भाइयों को बचाओ, अपने रिश्तेदारों को बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ उस आग से जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर है। तो अब मैं आपके सामने ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान रखना चाहता हूं कि आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है, और उस हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि मेरे आका हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ाता हूँ सहाबा किराम को, और नमाज में कुरान पाक की क़िरात करता हूँ, तो मेरा दिल करता है कि मैं लंबी लंबी सूरतें पढ़ूं। मेरा दिल करता है कि मैं क़िरात को लंबा करूं, लेकिन फिर मेरे दिल में ख्याल आता है कि मेरे पीछे कुछ बूढ़े होंगे, कुछ मरीज होंगे, और फिर नमाज के दौरान जब मुझे पीछे से बच्चों के रोने की आवाज आती है, तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, उस वक्त आका अलैहिस्सलाम के पीछे मस्जिद नबवी शरीफ में मर्द भी नमाज पढ़ते थे और खवातीन भी नमाज पढ़ती थी, और वो खवातीन अपने बच्चों को उठाकर लाती थीं और सेन में बिठाकर फिर नमाज में मशगूल होती थीं। तो मेरे आका फरमाते हैं कि जब मुझे आवाज आती बच्चों के रोने की, तो मेरे दिल में ख्याल आता कि इससे मां को तकलीफ हो रही होगी, तो फिर मैं अपनी क़िरात छोटी कर लेता। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, देखा कि अल्लाह ताला के कलाम में और आका अलैहिस्सलाम के फरमान में, दोनों में कहीं भी ये चीज, इस्लाम के फरमान में
दोनों में कहीं भी ये चीज मना नहीं है कि आप बच्चों को ना लाएं। अगर मना होता तो खुद ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा देते कि नहीं भाई, बच्चों को मस्जिद में ना लाया करो, जब ये 15 साल के हो जाएं तो फिर इनको आने की इजाजत है। नहीं, शरीयत का हुक्म है कि 7 साल तक बच्चों को प्यार से पकड़ के अपने साथ मस्जिद में लाएं, उसको सिखाएं, उसको अल्लाह का घर दिखाएं और उसको पता चले कि मैंने कल को बड़े होकर क्या करना है और मेरी जिम्मेदारियां क्या है। और फिर जब 7 साल से बड़ा हो जाए तो फिर शरीयत का हुक्म है कि अगर वो फिर नमाज की तरफ ना आए तो उस पर सख्ती करें। तो मोअज़्ज़ज़ सामईन, सोचने की बात है, हमारी अक्सर मस्जिदों में यही मामला है। इल्ला माशा अल्लाह, बहुत अच्छे अच्छे उलमाए किराम भी हैं, बहुत अच्छे नमाजी भी हैं, लेकिन अक्सरियत आज हमारी मस्जिदों में यही सूरत हाल है कि हमारे बच्चों के साथ रवैया ठीक नहीं रखा जाता। शायद हम भूल गए कि हमने इस दीन को अपनी नस्लों में मुंतकिल करना है और नस्ल दर नस्ल इस दीन ने क़यामत तक चलना है। खुदा जाने हमारे आइमा मसाजिद ने ये कहां से पढ़ लिया, ये कहां से सुन लिया कि छोटे बच्चों को मस्जिद में ना लाया जाए। खुदारा, मैं हाथ जोड़कर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम से अपील करता हूं कि इस बात पर गौर करें, फिक्र करें कि बच्चों को रोक कर हम कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं दीन के ऊपर। यही वजह है कि आज हमारी मस्जिदें, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, कि वीरानी का मंजर पेश करती है। इतनी इतनी बड़ी बड़ी आलीशान मस्जिदें हमने बना दी, लेकिन उसके नमाज पढ़ने के लिए कोई नहीं आता। आप देखें तो मस्जिदों में नमाजी कहीं 2 हैं, कहीं 4 हैं, कहीं एक साफ है, बमुश्किल एक साफ बनती है। तो खुदारा, हम गौर करें अपने रवैयों पर, इन रवैयों को बदलें ताकि अल्लाह ताला हमें और हमारे दीन को अरूज अता फरमाए। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में कुरान मजीद और आका अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।